My lovely students, welcome to Mythological. Let us start the session. So, first question. Tanya prepared 4 different letters to be sent to 4 different addresses. For each letter, she prepared an envelope with its correct address. If the 4 letters are to be put into the 4 envelopes at random, what is the probability that only one letter will be put into the envelope with its correct address? The probability that only one letter will be put into the envelope with its correct address. ठीक है, सो एक एनवेलप को करेक्ट एड्रेस पर पुट करना है, बाकी 3 शुड बी इन इनकरेक्ट एड्रेस. इज दैट इट? सो क्या क्लियर है? तो व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी? सो इफ देयर आर 4 लेटर्स, लेट अस से ए, बी, सी and D, and their correct envelopes are, these are letters, and correct envelopes are 1, 2, 3, 4. And our condition is that the probability that only one letter will be put in the correct address. So first of all, we will have to select that one letter which has to be put in the correct address. Isn't it so? So since we have total 4 letters, we have to select one address which will be put in the correct address. Number of ways कितने आ जाएंगे? 4C1. To select that address, with 4C1, we can select that address, that particular letter which has to be put in the correct envelope. Let us say that letter is A. So A has been put in correct envelope. So for the remaining 3, we have to do derangement. All 3 should be put in incorrect envelopes. Isn't it so? कितने केसेस बनेंगे? पहले मैनुअली कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला देख लेंगे. सो फॉर बी, सी एंड डी, करेक्ट एनवेलप्स आर 2, 3 एंड 4. बट क्योंकि करेक्ट में डालना नहीं है, अब सबको इनकरेक्ट में पुट करना है. सो लेट अस से बी को हमने 2 के बजाय 3 पे पुट कर दिया. सो बी तो इनकरेक्ट में चला गया. नाउ फॉर सी एंड डी वी हैव टू चूज इनकरेक्ट. नाउ डी कैन नॉट बी पुट इनटू द 4. ठीक है, और फिर 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो डी को पुट कर दोगे 2 में एंड सी विल बी पुट इन 4. दिस कुड बी वन ऑफ द वेज. ठीक है, और दिस कुड हैव बीन that instead of putting B in 3, put B in 4. B को 4 में पुट कर दिया. Now C cannot be put in 3, तो C को 2 में पुट कर दो, D को 3 में पुट कर दोगे. So there are only 2 possible ways to derange 3 letters in 3 envelopes so that no letter goes in the correct envelope, बचे हुए 3 में से. ठीक है, so 4C1 into 2. 4C1 into 2. क्या क्लियर है? और टोटल वेज कितने हैं हमारे? 4 लेटर्स है, 4 एनवेलप्स है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो सकता है? 4 फैक्टोरियल. तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल विच इज टोटल केसेस. तो फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल. तो 4C1 इज 8/24. आंसर विल बी 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी 1/3. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके. और डिरेंजमेंट ऑफ n आर्टिकल्स, अरेंजिंग देम इनटू इनकरेक्ट, that is always equal to n factorial into 1 minus 1/1 factorial plus 1/2 factorial minus 1/3 factorial plus 1/4 factorial and so on till 1/n factorial. Okay, clear है? एंड लास्ट में रहेगा -1 to the power n into 1/n factorial. This is whole expression. Okay, so D3 की वैल्यू क्या आ जाएगा? As per this, D3 is equal to 3 factorial into 1 minus 1/1 factorial plus 1/2 factorial minus 1/3 factorial. Now these two get cancelled out. This is 6 into 1/2 minus 1/6. So 6 into 2/6 or 1/3. 6 into 1/3 is 2. So D3 comes out to be equal to 2. Similarly, you can find out values of D4, D5 and so on. Okay. Next question. A salesman sells 2 kinds of trousers, cotton trousers and woolen trousers. A pair of cotton trousers is sold at 20% profit and a pair of woolen trousers is sold at 40% profit. The salesman has calculated that if he sells 100% more woolen trousers than cotton trousers, his overall profit will be 35%. However, he ends up selling 50% more cotton trousers than woolen trousers, and he also gives 10% additional discount on the earlier price for both kinds of trousers. So what will be his overall profit? Overall profit क्या होगा in such a case? Okay, so
फर्स्ट कंडीशन इज दैट पेयर ऑफ कॉटन ट्राउजर्स इज सोल्ड एट 20%, पेयर यानी कि एक क्वांटिटी 1 रहेगा, ठीक है। सो अ पेयर ऑफ कॉटन ट्राउजर्स इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड अ पेयर ऑफ वुलन ट्राउजर्स इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है हमारा कितना, 35% का, एंड ऑल्सो गिवन दैट ही सेल्स 100% मोर वुलन ट्राउजर्स दैन कॉटन ट्राउजर्स। सो इफ कॉटन ट्राउजर्स आर इक्वल टू 1 यूनिट, देन वुलन ट्राउजर्स कितने होंगे, 100% मोर वुलन ट्राउजर्स दैन कॉटन, यानी कि 1 + 1 वुलन ट्राउजर्स हो जाएंगे 2, ठीक है। 1x और 2x का रेशियो होगा, बट क्लियर है। तो 1, इफ देर इज 1 कॉटन ट्राउजर, वुलन ट्राउजर्स हो गए 2, इफ देर इज 2 कॉटन ट्राउजर्स देन वुलन ट्राउजर्स विल बी 4, तो डबल हो जाएंगे जस्ट, ओके। और ओवरऑल हमारा एवरेज प्रॉफिट इज कमिंग आउट टू बी, नेट प्रॉफिट इज कमिंग आउट टू 35%, while there is 20% profit on cotton trousers and 40% profit on woolen trousers. So let us assume कि cost price of one cotton trouser, this is equal to C, and cost price of one woolen trouser that is equal to W. So एक cotton trouser profit कितना है, 20% का, so 20% of C will be 0.2 C. एक ही कॉटन ट्राउजर सेल कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 और 2 का रेशियो है। सो दिस विल बी प्रॉफिट ऑन कॉटन ट्राउजर्स प्लस प्रॉफिट ऑन वन वुलन ट्राउजर विल बी 40%, यानी 0.4 W, बट 2 वुलन ट्राउजर्स आर बीइंग सोल्ड, ठीक है। 1 और 2 की जगह 1x 2x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट x की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए x को क्यों परेशान करें, x की वैसे क्यों परेशान हो। तो ओवरऑल 35% प्रॉफिट हुआ, सो ओवरऑल प्रॉफिट इज 35%, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 1 cotton and 2 woolen trousers, तो C plus 2W is total cost, 35% of that, so 0.35 times this value. So this becomes 0.2C plus 0.8W, that is 0.35C plus 0.7W. So this becomes equal to 0.15C, which is equal to 0.1W, and hence cost price of cotton and woolen trousers का ratio is 0.1 by 0.15, which will be 2 by 3. So ratio comes out to be 2 by 3. For cotton and woolen trouser, the ratio comes out to be 2 by 3. Is that clear? ठीक है, so value assume कर देते हैं, let us say 2 by 3 ratio है, 200 rupees is cost price of cotton trouser and 300 rupees is cost price of woolen trouser. कुछ भी मान सकते हैं, तो 200 300 मान लिया, रेशियो 2:3 होना चाहिए, ओके। देन क्वेश्चन इज सेइंग हाउएवर ही एंड्स अप एक्चुअली सेलिंग 50% मोर कॉटन ट्राउजर्स देन वुलन ट्राउजर्स, 50% मोर कॉटन ट्राउजर्स देन वुलन ट्राउजर्स। तो ये तो हमने क्रक्स आ गया हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन से, दैट रेशियो ऑफ कॉटन एंड वुलन ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2:3, एंड इन एक्चुअलिटी ही एंड्स अप सेलिंग 50% मोर कॉटन ट्राउजर्स देन वुल। So if he sells 2 cotton trousers, let us say, then he'll be selling 2 woolen trousers, then he'll be selling 1 more cotton trouser, यानी कि 3 cotton trousers हो जाएंगे। And he also gives 10% additional discount on the earlier price, additional discount. तो initially cotton trousers पे he was getting 20% profit, 20% profit. तो cotton trousers were being sold at 120% of cost price. Isn't it so? Cotton trousers were being sold at 120% cost price of cotton trouser, और फिर एडिशनल 10% डिस्काउंट दे रहे हो। 10% किसका होगा, 120% का, 120 का 10% होगा, ठीक है, 120 का 10% होगा, तो 120 minus 12, सो 108% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉटन ट्राउजर, यानी कि 8% का प्रॉफिट बचेगा। इनिशियली 20% प्रॉफिट हो रहा था, 10% डिस्काउंट दे दिया, तो अब 20 minus 12, 8% ही बचा प्रॉफिट। So profit will be 8% on the cotton trousers. Similarly, woolen trousers पे भी 10% डिस्काउंट है। Initially 40% प्रॉफिट था, तो 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ woolen trousers minus 14%. So 140 minus 14, this will be 126%. एक सेकंड जूम पे क्लिक हो गया, ठीक है। सो 126%, यानी कि प्रॉफिट हुआ 26% का। क्या है, क्लियर है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 26% का। नंबर हमारा है 3 and 2, 3 कॉटन ट्राउजर्स, 2 वुलन ट्राउजर्स, और कॉस्ट प्राइस तो हमने लिया ही हुआ है 200 300 एज्यूम कर लिया,
या 2x 3x मान सकते थे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इज 200 and 300 फॉर कॉटन एंड वुलन ट्राउजर्स रिस्पेक्टिवली। सो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑफ कॉटन ट्राउजर्स और एक पे प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 200 का 8% विच विल बी 16, तो 16 इंटू 3 प्लस 2 वुलन ट्राउजर्स, प्रॉफिट ऑन वन इज 300 का 26%, 78 इंटू 2 and this divided by total cost price which will be 200 into 3 plus 300 into 2. So profit percentage will be total profit by total cost price multiplied by 100. Okay. So क्या वैल्यू आ रहा है, this is 16 into 3, देखो 6 तो कॉमन आ ही जा रहा है हमारा, तो 6 को कॉमन ले लिया हमने, इनसाइड ब्रैकेट दिस विल बी 8 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बिकम 17%, 17% विच इज क्लियरली अरिथमेटिक एवरेज ऑफ 8 and 26%, बिकॉज कॉस्ट प्राइस का रेशियो था 2:3, नंबर है हमारा 3:2, तो 1:1 का रेशियो आ गया, दैट इज वाई स्ट्रेट अवे हमारा प्रॉफिट केम आउट टू बी अरिथमेटिक एवरेज विच इज 17%. ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus 7 into 9 till 49 into 51. Okay, so जनरल टर्म निकाल लेते हैं सबसे पहले. What will be जनरल टर्म of this series? X is 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 and so on till 49 into 51. So 1, 3, 5 till 49. 1, 3, 5 are consecutive odd numbers. Consecutive odd numbers हैं और odd numbers का जनरल टर्म क्या होगा? That will be 2n minus 1. ओके, जब भी जनरल टर्म फाइंड आउट करोगे एक चीज ध्यान देना है कि 2n minus 1 भी हो सकता है, 2n plus 1 भी हो सकता है, बट जनरल टर्म वो होगा जहां पे कि n is equal to 1 रखने पे हमारा फर्स्ट टर्म आए. वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल टर्म इज दैट value for which if we are putting value n is equal to 1 we are getting the first term. So if you put n is equal to 1 तो 2n minus 1 पे तो 1 मिल जाएगा at n is equal to 1, but यहाँ पे value मिलेगा 3 at n is equal to 1. So our general term this is not 2n plus 1, this is 2n minus 1 for sure. और फिर next value क्या है? plus 2. So this is 2n minus 1 into 2n plus 1 और यही सारे के सारे टर्म्स में कंटिन्यू होगा. n is equal to 1 पे this will be 1 into 3, n is equal to 2 पे this will be 3 into 5. तो क्या आ गया 2n minus 1 into 2n plus 1 that is general term and this is equal to 2n square whole square minus 1 square. So this is 4n square minus 1. Number of terms कितने हैं? 1, 3, 5 till 49. 49 is 25th odd term. 25th odd term है, total terms है 25. So total terms है, this is 25th term. पुट करके भी देख सकते हो कि n की जगह 25 पुट कर दो tn में तो क्या वैल्यू आ जाएगा? दिस विल बी 50 minus 1 into 50 plus 1 यानी कि 49 into 51. तो टोटल टर्म्स है 25 और 25 टर्म्स का सम चाहिए हमको, सम ऑफ 25 टर्म्स. तो सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस 1, दिस बिकम सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1, सिग्मा यानी कि समेशन. ठीक है, 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लेके आ जाओ तो 4 को बाहर आ जाएगा अपना, 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1. अब 1 तुम ऐड कर रहे हो कितने टाइम्स? 25 टाइम्स इन टोटल, तो 25 ही सम आ जाएगा स्ट्रेट अवे. और सिग्मा n स्क्वायर दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. सिग्मा n इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2. सिग्मा n इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सिग्मा n स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ओके, सो 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 25. So that will become 4 into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 minus 25. And since n is equal to 25, put कर दो n की वैल्यू 25.
So this becomes 4 into 25 into 26 into 51 divide by 6 minus 25, 17 और 13 बचा, 4 into 25 100 हो जाएगा, तो 100 into 21 22,100 minus 25, so this is 22,075 0 ठीक है, 22,075 will be the answer. क्लियर है? बढ़िया, अभी नंबर बोला है 22,075. ठीक है, 22,075 will be the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. What is the probability of rolling the same number exactly 3 times with 5 throws of a 6-sided dice? Probability of rolling the same number exactly 3 times with 5 throws of a 6-sided dice. Same number exactly 3 times with 5 throws. Okay, so क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं हमारा? देखो, one could be कि 3 outcomes are 1 and other 2 outcomes should not be 1 because exactly 3 times same number has to be thrown. अब बाकी आउटकम्स में हमारा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट दो 3 आउटकम्स बिकॉज जैसे ये पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है. 1 1 2 1 3, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल बिकॉज एग्जैक्टली 3 टाइम्स वी आर गेटिंग 1. ठीक है, सो बोथ आर फाइन. सो यू हैव टू सेलेक्ट 3 थ्रोज आउट ऑफ 5 जिनमें की सेम नंबर आएगा. ठीक है, सो बाई 5 C3 वी कैन सेलेक्ट, by 5 C3 we can select those 3 throws जहां पे कि हमें exactly same number चाहिए. अब वो जो 3 throws हमने select कर लिए हैं, selection of 3 throws, अब जो 3 throws हमने select कर लिए वहां पे नंबर क्या आएगा? It could be 1 1 1 और 2 2 2 और 3 3 3 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6. तो टोटल 6 केसेस है. 6 में से कोई एक केस आएगा. Isn't it so? क्या ही क्लियर है? 6 में से कोई एक केस आएगा. ओके, अब जो बच गए हमारे, these are 3 throws which we have selected. So for the remaining two we do not need, let us say अगर 1 select हो गया था, if 1 is the common throw, that is the outcome of for exactly 3 throws, तो बचे हुए 2 throws में 1 नहीं आना चाहिए. बेसिकली बचे हुए 2 throws में exactly that number should not appear that has already appeared in the 3 throws. So remaining options for the other 2 throws are only 5 options available है और उनमें रिपीट हो सकता है आपस में, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो इफ लेट अस से 111 is the outcome for those 3 throws that we have selected, then for the remaining we cannot have 1, we can have 2 3 4 5 6 for the remaining 2 throws. तो 5 options for both, so these will be total favorable outcomes. ठीक है, this 6 is for all 3 throws and 5 into 5 is for remaining 2. These are favorable outcomes. total outcomes कितने होंगे? total outcomes होंगे हमारे पास 6-sided dice है और 5 times we are throwing, तो 6 into 6 into 6 into 6 total 5 times. ओके, सो 6 से एक 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से 3 comes out to be 10, तो 10 into 5 into 5 by 6 to the power 4 which is 36 का स्क्वायर 1296. 5 बच जाएगा, दिस विल बी 648, तो 125 अपॉन 648, दिस शुड बी द आंसर. ऑप्शन ई शुड बी द आंसर, 125 by 648. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of the perimeters of an equilateral triangle ABC and a rectangle PQRS is 288 centimeter. The area T of the triangle and area R of the rectangle both in square centimeter satisfy the relationship R is equal to T square. The sides of the rectangle are in the ratio 3:4. If a circle is drawn circumscribing the rectangle PQRS, then find its radius. ठीक है, सर्कल इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग रेक्टेंगल PQRS, तो रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का, बट पहले वी नीड टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. साइड का रेशियो तो गिवन है 3:4.
Okay, there is an equilateral triangle ABC, then we have rectangle PQRS, or side ka ratio 3:4. Let us say side length for equilateral triangle is A, because this is equilateral triangle, तो all side lengths are equal. और rectangle में side lengths मान लेते हैं 3B 4B, because 3:4 का ratio है, तो 3B and 4B. So total sum of perimeters is 288 centimeter. Our perimeter of triangle will be 3A plus perimeter of rectangle will be 2 times length plus breadth, 2 times of 3B plus 4B. That is 288. Or basically this becomes 3A plus 14B is equal to 288. ठीक है. Okay. अब condition, important condition between area of triangle and area of rectangle, that is R is equal to E square. R is equal to E square is important condition. T का वैल्यू क्या होगा? T is area of the triangle, तो T की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/4 टाइम्स A स्क्वायर, एंड R is area of the rectangle, तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ, विच विल बी 3B इंटू 4B, 12B स्क्वायर. So capital R is equal to T square, and hence capital R is 12B square, which is equal to T square √3/4 A square whole squared. So 12B square is equal to 3/16 into A to the power 4. So B square is equal to A to the power 4 upon 16 into 4, and hence B will be equal to A square upon 8. Value of B will be A square upon 8. Is this clear? B will be A square upon 8. So अब ये वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा हमको. So the quadratic comes out to be 3A plus B is equal to A square plus 8, 14 times A square by 8. This is 288. Multiply by 4, so 4 into 3, 12A plus 7A square is equal to 288 into 4. और 7A square plus 12A minus 288 into 4 कितना आएगा? That will be 1112. This is equal to 0. 7A square plus 12A minus 1112, that is equal to 0. So अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है. So A will be equal to minus B, क्वाड्रिक के टर्म्स में, ठीक है. ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट क्या होंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, तो -12 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 माइनस 4 इंटू 7 इंटू माइनस 112 क्या था? 288 इंटू 4. बिकॉज जितना भी हम सिंपल अपना कर सकें कैलकुलेशन उतना बेटर है, ठीक है. सो दिस विल माइनस 288 इंटू 4. सो 144 तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे से, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7. सो दिस विल बी -12 प्लस माइनस 144 यहाँ भी है, 144 यहाँ भी है, तो 144 को कॉमन ले लोगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा 12, 12 बाहर आ जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 14. So this is 4 into 4, 16. 16 sevens are 112 into 2, 224 plus 1, 225. So this is -12 plus -12 into root 20, 225 by 14. So this becomes 15. 15 बन गया, ठीक है. So -12 plus -12 into 15 by 17 by 14. So one case will be, this will be -12 into 16 by 14 or 12 into 14 by 14.
अब ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे ए का वैल्यू, और ए सिंस ए साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड लेंथ है तो ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0, सो ए कैनॉट बी लेस देन 0, ठीक है, दिस कैनॉट बी लेस देन 0, so definitely with this would be 12, a is equal to 12 आ गया यहाँ से वैल्यू। अब क्योंकि इक्वेशन इतनी टिपिकल थी इसको फैक्टराइज करना मुश्किल था, दैट इज वाई हमने ऐसे सॉल्व किया। ओके, क्लियर है? सो a came out to be equal to 12 and if a is equal to 12 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा? b was equal to a square by 8, तो 12 into 12 by 8, 144 by 8 which is equal to 18, तो b comes out to be equal to 18, ठीक है, b comes out to be equal to 18। अब अगर b 18 आ गया तो 3b 4b क्या होगा? बिकॉज दीज आर द साइड लेंथ्स ऑफ रेक्टेंगल, 3b विल बी 54, 4b विल बी 72, 3b विल बी 54, 4b विल बी 72। और क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सर्कल इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल PQRS, so if this is rectangle PQRS, and if you are drawing a circle circumscribing a rectangle, then diagonal of the rectangle will be diameter of circle. One side is 54, other side is 72, but ratio क्या है अल्टीमेटली? रेशियो तो 3:4 था ना साइड्स का, तो 3:4 का रेशियो है तो डायगोनल हमारा क्या होगा? 5 यूनिट्स होगा। सो दिस इज 54, दिस इज 72, दिस विल बी 90 सेंटीमीटर, और डायगोनल इज 2 टाइम्स रेडियस, तो 2r is equal to 90 सेंटीमीटर and hence radius will be equal to 45 centimeter. Radius will be 45 centimeter. Option B will be the answer. Okay, clear है? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, what are the last two digits of the sum s if s is equal to 11 to the power 1 plus 11 to the power 2 plus 11 to the power 3 plus 11 to the power 4 plus 11 to the power 5 till 11 to the power 55? सो लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द सम s, अगर लास्ट डिजिट पूछा तो कोई दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि लास्ट डिजिट तो 11 का कुछ भी पावर हो 1 ही आने वाला है, लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है। लास्ट टू डिजिट्स पूछा है सच, तो 11 टू द पावर 1 इट इज 11, 11 स्क्वायर इज 121, बट लास्ट टू डिजिट्स क्या है? 21, 11 क्यूब इट इज 1331, बट लास्ट टू डिजिट्स क्या है? 31, 11 टू द पावर 4 14641, बट लास्ट टू डिजिट्स दोज आर 41। तो क्या पैटर्न देख पा रहे हो? 11 21 31 41, तो इज अ क्लियर पैटर्न, ठीक है। सो 11 टू द पावर 5 में विल बी हैविंग लास्ट टू डिजिट्स एज 51, 11 टू द पावर 6 61, 11 टू द पावर 7 71, 11 टू द पावर 8 81, 11 टू द पावर 9 91, and then 11 to the power 10 में this will be 01, and again 11 to the power 11 में फिर से 11 to the power 1 से कहानी चालू हो जाएगी, यानी कि there is a complete cyclicity, 11 21 31 41 51 61 71 81 91 01, ठीक है। यही सेम पैटर्न फॉलो करेगा हमारा 11 टू द पावर 11 12 13 14 टिल 20, यही पैटर्न फॉलो करेगा 21 11 टू द पावर 21 22 23 30 तक, और यही सेम फिर 31 से फॉलो करेगा, यही सेम 41 से फॉलो करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो वी कैन फाइंड आउट सम की 11 टू द पावर 1 से लेकर अगर 11 टू द पावर 10 तक का सम करें तो फिर लास्ट टू डिजिट्स क्या आएगी इन दिस सम, और लास्ट टू डिजिट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है ऑन लास्ट टू डिजिट्स, बिकॉज जो थर्ड डिजिट 100 डिजिट है उसकी वजह से हमारा 100 डिजिट डिटरमाइन होगा या उसके पहले के डिजिट्स, बट 10 डिजिट और यूनिट डिजिट डिटरमाइन नहीं होगा। सो फॉर लास्ट टू डिजिट्स आवर ओनली कंसर्न शुड बी लास्ट टू डिजिट्स ओनली, ठीक है। सो इफ वी ऐड ऑल दीज लास्ट टू डिजिट्स 11 प्लस 21 प्लस 31 एंड सो ऑन टिल 01, ओके। सो क्या सम आ जाएगा हमारा? 1 is 10 टाइम्स, तो 1 की वजह से तो सम 10 आ जाएगा, प्लस
10 कॉमन ले लोगे बचे हुए में, क्योंकि बचा क्या है 10 20 30 टिल 90 प्लस 00। ओके, सो या तो ऐसा है कि एवरेज ले लो, क्योंकि 00 तो इग्नोर कर सकते हो, और बच गया हमारा 10 से लेकर 90 तक एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो या तो एवरेज इज 50, ठीक है, 15 into 9 कर लो, अदरवाइज 10 कॉमन लोगे तो 1 से लेकर 9 तक का सम करना है, तो दैट विल 450, तो दिस कम्स आउट टू बी 10 प्लस 450 which is 460 and same pattern will follow for 11 to the power 11 to 20। okay, so basically हमारे पूरा सम कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू 11 to the power 1 plus till 11 to the power 10 plus 11 to the power 11 till 11 to the power 20 plus 11 to the power 21 till 11 to the power 30, क्योंकि सेमी पैटर्न है यहाँ पे, plus 11 to the power 31 till 11 to the power 40 plus 11 to the power 41 till 11 to the power 50 और लास्टली 11 to the power 51 से लेके 55 तक की स्टोरी। सो फॉर फर्स्ट 5 फॉर ऑल ऑफ देम सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स विल बी 460, ठीक है, और 460 में फोकस करो सिर्फ 60 पे, बिकॉज हमारा मतलब क्या है, हमारा कंसर्न इज ओनली लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट 5 फॉर दीज 5 लास्ट 2 डिजिट्स विल डिपेंड ऑन 60 इंटू, और फिर ये 5 टर्म्स है टोटल 60 इंटू 5 प्लस for this value last 2 digits will be 11 plus 21 plus 31 plus 41 plus 51। and here 60 into 5 is 300, so last 2 digits तो 00 हो गया इसकी वजह से, plus this value, so यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 11 21 31 41 51 which is 150 plus 5 155, so last 2 digits का सम आ जाएगा 55 only, and hence last digits in the complete summation will be 55, option D। this will be 55, option D। क्या ये क्लियर है? ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Let a and b be the roots of the equation x square plus 3x minus 1 is equal to 0, and if Pn is equal to a to the power n plus b to the power n for n greater than equal to 0, then for n greater than equal to 2 Pn का वैल्यू क्या होगा? For n greater than equal to 2 what will be value of Pn? So if a and b are the roots of the equation x square plus 3x minus 1 this is equal to 0, so sum of roots क्या आ जाएगा यहाँ से? Sum of roots will be a plus b which is equal to minus 3, and the product of roots will be a into b which is equal to minus 1. Sum is minus 3, product is minus 1. Okay, and Pn is equal to a to the power n plus b to the power n, और Pn is given as in terms of Pn minus 1 and Pn minus 2. Pn minus 1 क्या होगा? That would be a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1, ठीक है। Similarly P1 क्या होगा? a to the power 1 plus b to the power 1, okay, और इसकी वैल्यू क्या है? P1 is equal to minus 3. Now if we multiply Pn minus 1 and P1, तो यहां से हमें a to the power n b to the power n मिल जाएंगे, यानी कि somehow हम Pn minus 1 और Pn को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। So if we multiply a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 with a plus b, तो result will be a to the power n plus a to the power n minus 1 into b plus b to the power n minus 1 into a plus b to the power n, and now these two a to the power n plus b to the power n they become equal to, इनको साथ में ले आओ पहले। now on the remaining two terms a b कॉमन ले लो, because जैसे ही a b कॉमन लोगे remaining will be a to the power n minus 2 plus b to the power n minus 2, and here this will be Pn minus 1 and this a plus b is minus 3, तो minus 3 times Pn minus 1, तो minus 3 times Pn minus 1 this is equal to Pn, और ab is equal to minus 1, तो ab की जगह minus 1 पुट कर दो,
So plus minus 1 into Pn minus 2. And hence Pn becomes equal to minus 3 x, and this was Pn minus 1. Minus 3 Pn minus 1 plus Pn minus 2. Pn is equal to minus 3 Pn minus 1 plus Pn minus 2. So option A is the answer for this question. Option A will be the answer. Okay. क्या ही क्लियर है? अब ये तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच हो गया. Second approach could be for this question कि what will be value of P0? P0 will be a to the power 0 plus b to the power 0. Or a to the power 0 is 1, b to the power 0 is also 1, so P0 is equal to 2. What will be P1? P1 will be a to the power 1 plus b to the power 1, यानी कि a plus b is equal to minus 3. So this is equal to minus 3. P2, this is a square plus b square, और a square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab, और a plus b हमारा है minus 3, तो minus 3 whole square minus 2 ab, और ab is minus 1. So this will be 11. P2 comes out to be equal to 11. ठीक है, अब कनेक्ट कर लेते हैं Pn और Pn minus 1 और Pn minus 2 को कनेक्ट करना है, तो P2 P1 और P0 को कनेक्ट कर लो. ठीक है, सो P2 इज इक्वल टू 11. अब देख लेते हैं P1 और P0 से कौन से ऑप्शन से हमारा 11 आ रहा है. जिससे 11 आ रहा होगा दैट शुड बी द आंसर. बट प्रॉब्लम यहां पे सिर्फ एक है कि ऑप्शन ई इज ऑल्सो गिवन. ठीक है, दैट इज ओनली इशू कि इवन इफ कोई एक ऑप्शन हमारा मैच कर जा रहा है और सिर्फ एक ही मैच करना चाहिए, अगर एक से ज्यादा मैच करेंगे तो फिर हमें कुछ और वैल्यूज लेनी पड़ेंगी. बट इवन इफ दैट वन ऑप्शन इज मैचिंग, सो वी कैन नॉट बी 100% श्योर, बट स्टिल दिस इज वर्केबल. सो ऐसा अप्रोच भी हमें यूज करना चाहिए एग्जाम में. ठीक है, और फिर एक से ज्यादा ऑप्शन ले लो. फॉर एग्जाम्पल तुमने P0, P1, P2 को करके एक आंसर हमें मिल गया. ठीक है, देन यू कैन डबल वेरीफाई बाई टेकिंग P3 एज वेल. यानी कि नेक्स्ट टाइम तुम क्या करोगे, P0, P1, P2 से हमें लेट अस से ABCD में से एक ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया. ठीक है, अभी तुम्हें पता है कौन सा सेटिस्फाई करेगा. ऑप्शन ए विल बी सेटिस्फाइंग फॉर श्योर बिकॉज दैट इज द आंसर. बट लेट अस से दैट आंसर केम. ठीक है, नाउ यू आर नॉट श्योर वेदर ए विल बी द आंसर और ई विल बी द आंसर. देन यू कैन टेक P1, P2 एंड P3 एंड डबल वेरीफाई कर लो. ठीक है, P1 वी नो दैट इज -3, P2 is 11, P3 is equal to a cube plus b cube. So this will be a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. a plus b की वैल्यू पता है, ab की वैल्यू पता है, पुट कर दोगे. So minus 3 whole cube minus 3 into minus 1 into minus 3. ठीक है, so this will be minus 36. डबल वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, so first of all P2 is equal to 11 आ गया. अब ऑप्शन ए को ट्राई कर लो. ऑप्शन ए के हिसाब से this will be minus 3 into P1. P1 is equal to minus 3 plus 2. So this comes out to be equal to 11, which is matching. ऑप्शन बी को ट्राई कर लो. ए मैच कर रहा है, बट जरूरी थोड़ी सिर्फ ए ही मैच करे, इसलिए बाकियों को भी ट्राई करना जरूरी है. कोई और मैच नहीं करना चाहिए, तभी तो ये आंसर होगा. ठीक है, बी में दिस विल बी 3 इंटू -3 -2. So this is -11, not matching. ऑप्शन 3 माइनस Pn minus 1, यानी कि माइनस ऑफ -3 plus 3 times Pn minus 2. So 3 times 2. So this is 9 plus 6, 15, not matching. Option D, Pn minus 1, which is -3 plus 3 into 2. So -3 plus 6, this is equal to 3, not matching. So only option A is matching. और फिर डबल वेरीफाई करना है तो फिर एक बार और मैच करा लोगे. क्लियर है? ये तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कर ही रहते. बट इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस कई बार दिस मेथड ऑफ पुटिंग वैल्यूज इज मच इजियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. fx इज अ फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल. फोर्थ ऑर्डर यानी कि डिग्री 4 होगा. ठीक है, x टू द पावर 4 विल बी हाईएस्ट पावर. fx इज फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट्स एंड विद नो कॉमन फैक्टर. नो कॉमन फैक्टर. ठीक है, द रूट्स ऑफ fx आर -2, -1, 1 and 2. If p is a prime number greater than 97, then largest integer that divides fp for all values of p. Now fx is a fourth order polynomial, integer coefficients है but common factor कोई भी नहीं है, which implies कि let us say हमने एक इक्वेशन लिखा रैंडम कि fx is equal to 2x square या 2x to the power 4 क्योंकि फोर्थ ऑर्डर है,
2x to the power 4 plus 6x cube plus 8x square plus 12x plus 4. ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव ऑल इंटीजर कोफिशिएंट्स, फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है, बट कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या, 2 का कॉमन फैक्टर, बिकॉज ऑल इंटीजर कोफिशिएंट्स आर मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 का कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो उसकी वजह से हो क्या जाएगा, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज 2 times x to the power 4 plus 3x cube plus 4x square plus 6x plus 2. अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट 2 तो कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, तो ये वाला केस नहीं है इस केस में, विद नो कॉमन फैक्टर मीन्स दैट ओनली. ठीक है, कि देयर इज नो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 व्हेन यू आर टेकिंग ऑल इंटीजर कोफिशिएंट्स. ठीक है, सारे कोफिशिएंट्स ले रहे हैं, लेकिन लेट्स से 4 इवन आ रहे हैं तो 5वां इवन नहीं होगा फिर. ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर कोई एक नहीं मिलेगा हमें, देयर इज नो कॉमन फैक्टर फॉर श्योर. ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी अवर fx का वैल्यू. ओके, रूट्स आर गिवन -2, -1, 1 and 2. रूट्स आर -2, -1, 1 and 2. Okay, so fx in that case can be written as x minus -2, because -2 is satisfying, or x minus -1 into x minus 1 into x minus 2. So this becomes x plus 2 into x plus 1 into x minus 1 into x minus 2. If p is a prime number greater than 97, now this is a previous question from Z. P is a prime number greater than 97, then largest integer that divides fp for all values of p. So fp can be written as p plus 2 into p plus 1 into p minus 1 into p minus 2. Or in a more better way, p minus 2 into p minus 1 into p plus 1 into p plus 2. This is value of fp, and largest integer that divides fp for all values of p. क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो वी कैन से दैट p minus 2, p minus 1, p plus 1, p plus 2. अगर हम कोई रैंडम वैल्यू पुट करें p की जगह पे, ठीक है, p इज अ प्राइम नंबर एंड दैट इज ग्रेटर देन 97. लेट अस से p इज इक्वल टू 101 पुट कर दिया हमने. So f of 101, this will be equal to 101 minus 2, 99 into 100 into 102 into 103. 99 into 100 into 102 into 103. Okay, क्या ये समझ में आता है? So basically all these numbers are consecutive except p नहीं है पार्ट इसका, but p तो एक प्राइम नंबर है, and if p is a prime number तो there is no common factor for p. I mean no common factor क्यों लिख रहे हैं, there are only 2 factors. ठीक है, और 1 और इस नंबर के अलावा कोई और तो फैक्टर है नहीं, only 2 factors are there for this prime number. ठीक है, but if in general we multiply 5 consecutive numbers, ठीक है, n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4. If we are multiplying 5 consecutive numbers, then this is always divisible by 5 factorial, which is 120. If you are multiplying 5 consecutive numbers, then this is always divisible by 5 factorial, which is 120. Isn't it so? क्या क्लियर है? अब ये 5 consecutive numbers आए कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी 5 consecutive numbers हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. बट द पॉइंट इज कि इन दिस केस वी डू नॉट हैव 4 नंबर्स तो हैं हमारे, 599 से लेकर 103 तक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 101 नहीं है जो कि मिडिल का नंबर है, वो तो नहीं है, बट दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर. दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि लॉजिक क्या होता है हमारा, लॉजिक इज वाई दिस इज डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल, लॉजिक इज दैट वन ऑफ दीज नंबर्स विल बी, देखो जब आप 5 कॉन्स्टेंट नंबर्स ले रहे हैं तो देयर विल फॉर श्योर बी 2 इवन नंबर्स, एटलीस्ट 2 इवन नंबर्स होंगे. ठीक है, और कॉन्स्टेंट इवन नंबर्स होंगे, तो इफ देयर आर एटलीस्ट 2 इवन नंबर्स, एटलीस्ट 2, 3 भी हो सकते हैं. ठीक है, सो इफ देयर आर 2 इवन नंबर्स, 1 विल बी मल्टीपल ऑफ 2, 1 विल बी मल्टीपल ऑफ 4. Similarly, there will be at least one number which is a multiple of 3. There will be at least one number which is a multiple of 5. In fact, exactly one number which is a multiple of 3. Exactly एक ही नंबर होगा जो कि multiple of 5 होगा. ठीक है, so this will be divisible by 2 into 4 into 3 into 5, which is 5 factorial. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, but if let us say हम कहें कि we have a product p minus 2 into p minus 1 into p plus 1 into p plus 2.
and p is a prime number, or p is a prime which is greater than 97, which is the case at present. ठीक है, so in this case we will definitely, since we have 5 consecutive numbers, so in 5 consecutive numbers there will be 2 even numbers. 1 will be a multiple of 2, 1 will be a multiple of 4. There will be at least one number which is a multiple of 3. Okay, at least one number which is a multiple of 3 and at least one number which is a multiple of 5. But ये जो प्राइम नंबर है, दिस विल नीदर बी, ये ना तो 2 का मल्टीपल होगा, ना तो ये 3 का मल्टीपल होगा, ना ये 5 का मल्टीपल होगा. ठीक है, सो नीदर ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 5. टू और 3 और 5, क्या ये पार्ट क्लियर है? सो जब हमारा p ना तो 2 का मल्टीपल है, ना 3 का मल्टीपल है, ना 5 का मल्टीपल है, तो अगर हम इस p को हटा भी दें, हम सिर्फ बाकी नंबर्स का प्रोडक्ट लें, तो प्रोडक्ट ऑफ p माइनस 2 इंटू p माइनस 1 इंटू p प्लस 1 इंटू p प्लस 2, दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल, बिकॉज p तो प्राइम था. ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल विच इज 120. तो एटलीस्ट 120 से डिविजिबल तो होगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती कि दिस विल फॉर श्योर बी डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इतना तो पता चल गया हमको कि दिस इज एटलीस्ट डिविजिबल बाई 120 फॉर श्योर. ओके, नाउ कम्स द क्रूशियल पार्ट, बिकॉज 120 का 240 360 भी ऑप्शन गिवन है, तो हमें उनके लिए भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं उससे डिविजिबल तो नहीं है. सो सिंस p इज अ प्राइम नंबर एंड ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ 3 and 2, except 3 and 2, बाकी जितने ही प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर इन द फॉर्म 6k plus minus 1. They are in the form 6k plus minus 1. Isn't it so? तो दो ही केसेस हैं, या तो p will be 6k plus 1 और it will be 6k minus 1. 6 का मल्टीपल प्लस 1 होगा या 6 का मल्टीपल माइनस 1 होगा. Isn't it so? ठीक है, सो दो ही केसेस बने हमारे, p minus 2 into p minus 1 into p plus 1 into p plus 2. Now first case लेते हैं. First case is when p is a multiple of 6k minus 1, या p is 6k minus 1. 6 के मल्टीपल से 1 कम है, so if p is 6k minus 1, p minus 2 क्या हो जाएगा? This will be 6k minus 3. This will be 6k minus 2. This will be 6k, multiple of 6 basically, and this will be 6k plus 1. Now why is it important? Because we know कि this is divisible by 5 factorial. बट 5 फैक्टोरियल में 3 का एक ही मल्टीपल आता है अपना. ठीक है, एक ही मल्टीपल आता है. बट इफ यू ऑब्जर्व दीज नंबर्स, वी हैव 2 मल्टीपल्स ऑफ 3. 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज देयर. इजंट इट सो? ठीक है, इवन वाला कंसिडरेशन तो हम कर चुके हैं, बट देयर आर 2 मल्टीपल्स ऑफ 3, 6k minus 3 and 6k. सो दिस विल बी डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 3, बिकॉज 3 का एक मल्टीपल तो हमने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है. ठीक है, एक और मल्टीपल हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग 2 मल्टीपल्स. बट देखते हैं सेकंड केस में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. व्हेन प्राइम नंबर p is 6k plus 1, so if p is 6k plus 1, in that case p minus 2 becomes 6k minus 1, p minus 1 becomes 6k, p plus 1 becomes 6k plus 2, and p plus 2 becomes 6k plus 3. So even in this case we are getting 2 multiples of 3, यानी कि this is always divisible, this product is always divisible by 5 factorial into 3, यानी कि 120 into 3. So answer will be 360. Answer in this case will be 360. That the largest integer that divides fp for all values of p, that is 360. ठीक, किसी केस में 720 से भी डिवाइड हो सकता है, बट दोज विल बी ओनली पर्टिकुलर स्पेसिफिक केसेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 का मल्टीपल आ गया बीच में कहीं, या 16 का मल्टीपल आ गया तो और बड़े नंबर से डिवाइड हो जाएगा, बट वो तो कोई पर्टिकुलर केस है. इन जनरल दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई फॉर 360 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p as long as p is a prime number. Okay, बिकॉज प्राइम नहीं हुआ तो जरूरी नहीं कि 2 मल्टीपल्स मिल जाए 3 के, बट इफ p is a prime number then definitely that will be the case. Okay, क्लियर है? ठीक है, क्या है पार्ट क्लियर है? आगे बढ़े.
Next question. Let P be the sum of all the values of k which satisfy the equation 5k plus 2 is equal to 2k minus 1. What is the value of 2p minus 1 given that fractional part of x is denoted by this expression and greatest integer less than or equal to x is denoted by this expression. Okay, so let us say we have a value x is equal to 2.35. X is equal to 2.35. So we can write 2.35 as 2 plus 0.35. ठीक है, 2 plus 0.35. So x is equal to, any value of x is equal to integral part of x plus fractional part of x. So if x is 2.35, so integral part of x of 2.35, this will be equal to integer which is 2 and fractional part is 0.35. Okay, क्या है clear है? Now just in case if we have x as negative value, x हमारा है let us say minus 0.6. ठीक है, तो इंटीजर तो इंटीग्रल पार्ट तो हमारा नेगेटिव हो सकता है बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. दिस कैनॉट बी नेगेटिव. तो अगर हमारा एक्स नेगेटिव है, एक्स इज माइनस 0.6, वी कैन राइट दिस एज माइनस 1 प्लस 0.4. सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस 0.6 दिस इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, एंड fractional part of minus 0.6 this is equal to 0.4. क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, बिकॉज x denotes the greatest integer less than or equal to x. ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? अगर ये बात समझ में आती है तो लेट अस से वी हैव अ नंबर 3.36 minus 1. So what will be its integral part? इसका integral part क्या होगा? Now integral part will be, you can say 3.36 minus 1 is 2.36. So 2.36 का integral part will be equal to 2. But since integral part will always be an integer, ठीक है, so हम इस expression को ऐसे भी लिख सकते हैं. This can also written as integral part of 3.36 minus 1. Because 1 तो integer है, तो 1 को तुम बाहर भी लेके आ सकते हो, बस as long as 1 is integer. तो अगर 1 इंटीजर है तो 1 को बाहर भी ले आ सकते हो. तो नाउ दिस रिजल्ट विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस विल बी 3 minus 1 which is equal to 2. So this is also correct. This is also correct. Okay. But what is not correct is कि अगर 1 के बजाय कोई फ्रैक्शनल कोई नंबर होता, लेट अस से हमारा minus 1.42, then this is not equal to integral part of 3.66 minus 1.42. ठीक है, this would have been incorrect because यहाँ पे हमारा the value that we are subtracting is not an integer. ठीक है, जब तक इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं, बट दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ k माइनस 1. ओके, अब क्योंकि k माइनस 1 हो रहा है, 1 इज इंटीजर, तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ k माइनस 2. This is equal to 5 times fractional part of k plus 2. So 5 times fractional part of k becomes equal to 2 times integral part of k minus 2 और plus 2 को भी राइट हैंड साइड लेके चले जाएगा तो -4 हो जाएगा. एंड हेंस इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ k -4 डिवाइडेड बाई 5. ओके, क्लियर है? Now since fractional part this is always between 0 and 1, तो बस inequality लगा दो. This is between 0 and 1. So 2k minus 4 by 5 this is always between 0 and 1. Multiply by 5. 5 से multiply कर दो. अब 0 को 5 से multiply करो 0 ही रहेगा. तो 0 is less than equal to 2 integral part of k minus 4 which is less than 5. 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 0 से लेके 5 आ गया. अब 4 ऐड कर दो,
सो 4 ऐड करते हैं, दिस बिकम्स 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ के, -4 से +4 करके वो तो हट गया, लेस देन 5 + 4 9. नाउ डिवाइड बाई 2. So this becomes 2 is less than equal to integral part of k, which is less than 9 by 2. 2 is less than equal to k, integral part of k, which is less than 9 by 2. क्या ये पार्ट क्लियर है? Is this much clear? Okay. ठीक है. सो फ्रेश पेज पे लिखते हैं इसको. दोनों कंडीशंस हमारे पास है. ठीक है. अब इस कंडीशन में क्या है, सिंस इंटीग्रल पार्ट ऑफ के तो इंटीजर ही होगा, इंटीजर होगा और 2 से लेकर 9 by 2 के बीच में है और 2 पे इक्वालिटी भी है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ के दैट कैन बी इक्वल टू 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है बिकॉज लेस देन 9 by 2 है. तो 2, 3 और 4, दीज आर द 3 केसेस फॉर इंटीग्रल पार्ट. ओके. सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के, this is equal to 2 times of k minus 4, 2 times of integral part of k minus 4 divided by 5. अब जब तक अपने एंड पे खुद से ये सब चीज़ें बार बार नहीं लिखोगे तब तक कंफर्टेबल नहीं होगे इन चीज़ों के साथ में. इंटीग्रल पार्ट ऑफ के, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के एंड सो ऑन. ठीक है. सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ के दिस कैन बी इक्वल टू 2, 3 और 4. सो फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ के इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वल टू 2. पुट कर दो इक्वेशन में. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के इज इक्वल टू 2 into 2 minus 4 by 5 which is equal to 0. So इंटीग्रल पार्ट ऑफ के 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के 0 है और k विल बी इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ के प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के. तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस में हमारा k विल बी इक्वल टू 2 + 0 विच इज इक्वल टू 2. सेकेंड केस इंटीग्रल पार्ट ऑफ के दिस इज इक्वल टू 3. सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के हमारा आ जाएगा 2 into 3 minus 4 by 5, 6 minus 4 by 5 यानी 2 by 5 आ जाएगा. तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 + 2 by 5. थर्ड केस when इंटीग्रल पार्ट ऑफ k इज इक्वल टू 4, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k हमारा आ जाएगा 2 into 4 minus 4 by 5 which is equal to 4 by 5 and hence k will be equal to 4 + 4 by 5. But question is saying let p be the sum of all values of k. तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. बिकॉज k की फर्स्ट वैल्यू मिली हमें 2, सेकेंड वैल्यू 3 + 2 by 5, थर्ड वैल्यू 4 + 4 by 5. सो p विल बी इक्वल टू 2 + 3 + 2 by 5 + 4 + 4 by 5. तो 4 + 3 7 + 2 9, 9 + 6 by 5 and 6 by 5 is 1 and 1 by 5. So this will be 10 and 1 by 5. This is the value of p. बट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p - 1 का इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2p - 1. सो p is 10 and 2 by 5. 2p will be 20 and 10 and 1 by 5. 2p will be 20 and 2 by 5. तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2p - 1, this will be integral part of 20 and 2 by 5 - 1. So this will be 19 and 2 by 5. So answer will be 19. ऑप्शन ई विल बी द आंसर 19. क्या क्लियर है? ओके. क्या बात समझ में आती है? ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ x इज इक्वल टू 9 + 4√5 to the power 48 and this is equal to integral part of x plus fractional part of x, where x is integral part of x, f is fraction, then x into 1 - f का वैल्यू क्या होगा? x into 1 - f का वैल्यू क्या होगा? Okay. Now before solving this question, we need to know one or two things. First thing is that we have 9 + 4√5 और जब भी कभी ऐसा टर्म्स गिवन हो रैशनल इररेशनल, ठीक है, सो दिस इज इररेशनल 9 + 4√5, तो यहाँ से हमें कुछ टर्म्स इररेशनल मिलेंगे, कुछ रैशनल मिलेगा. ठीक है. व्हाट विल बी कॉन्जुगेट ऑफ 9 + 4√5?
दैट विल बी 9 माइनस 4√5. ठीक है, सो 9 minus 4√5. If you multiply both of these, 9 plus 4√5 and 9 minus 4√5. तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा? प्रोडक्ट विल बी 9 स्क्वायर माइनस 4√5 स्क्वायर. सो 9 स्क्वायर इज 81. 4√5 स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर इंटू 5, 4 स्क्वायर इंटू रूट 5 स्क्वायर यानी 16 इंटू 5 विच इज 80. सो 81 इंटू 80 दिस इज इक्वल टू 1. सो 9 प्लस 4√5 into 9 minus 4√5, this is equal to 1. So we can say 9 plus 4√5, this is equal to 1 upon 9 minus 4√5. Isn't it so? क्या है, पार्ट क्लियर है? ठीक है, अगर जस्ट इन केस हम स्क्वायर कर दें तो 9 प्लस 4√5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 4√5 का स्क्वायर, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1. और 9 plus 4√5 to the power 48 into 9 minus 4√5 to the power 48, this will also be equal to 1, because basically this is 9 plus 4√5 into 9 minus 4√5 to the power 48, and this part inside is equal to 1, और 1 की पावर कितनी भी हो इक्वल टू 1 ही रहेगा. ठीक है, सो इफ x is equal to 9 plus 4√5 to the power 48, so can we say 1 by x, because this product is equal to 1. ठीक है, so this part, this will be equal to 1 by x, because product 1 आ रहा है. So 1 by x will be equal to 1 upon 9 plus 4√5 to the power 48. ओके, क्या है, क्लियर है? Is that part clear? Okay. One by x is 1 upon 9 plus 4√5 to the power 48. Which is equal to 9 minus 4√5 to the power 48 as well. अब गिवन है हमें x इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू क्या होगा? x इंटू 1 माइनस एफ, what will be the value of x into 1 minus f? Okay. अब देखो प्रोडक्ट हमारा दोनों वैल्यूज का 1 आ रहा है. ठीक है, और अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हमारा 1 आ रहा है, x इंटू 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 1. सो डेफिनेटली या तो दोनों 1 होंगे, बट इस केस में हमें पता है x इज मच लार्जर देन 1. x तो है 9 प्लस 4√5 टू द पावर 48. तो इफ वन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, डेफिनेटली अदर वैल्यू इज लेस देन 1. दूसरा वैल्यू लेस देन 1 होगा. क्या है, पार्ट क्लियर है? 1 इज ग्रेटर देन 1, तो सेकंड वैल्यू विल डेफिनेटली बी लेस देन 1. छोटू सा वैल्यू होगा बिटवीन 0 एंड 1, पॉजिटिव वैल्यू होगा. पॉजिटिव इसलिए होगा हमारे केस में बिकॉज या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे. ठीक है, तो पॉजिटिव तो होना ही है और लेस देन 1 होगा. अब देखो ऑब्जर्व करते हैं इसको, थोड़ा बाइनोमियल भी समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि x इज इक्वल टू 9 प्लस 4√5 टू द पावर 48 है. इन जनरल लेते हैं पहले इक्वेशन, x इज इक्वल टू लेट अस से a प्लस b टू द पावर 5. ओके, सो a प्लस b टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b. ठीक है, सो यहां पे टर्म्स हमारे क्या कहेंगे? वन टर्म विल बी a टू द पावर 5 व्हेन वी आर सेलेक्टिंग ऑल 5 a's, दिस विल बी a टू द पावर 5. और नंबर ऑफ एज कितने होंगे? देखो पहले वाले ब्रैकेट में से a सेलेक्ट करो, सेकंड में से भी यू आर सेलेक्टिंग, थर्ड में से भी है, फोर्थ में से भी है, फिफ्थ में से भी है. सो यू आर सेलेक्टिंग a फ्रॉम ऑल द 5 ब्रैकेट्स. नंबर ऑफ एज हो जाएंगे a टू द पावर 5, एंड सिंस वी आर सेलेक्टिंग ऑल 5 a's, नो 0 और नो b, तो 5 में से 0 b सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 5c0 टाइम्स a टू द पावर 5. सेकंड इज a टू द पावर 4 होगा, b टू द पावर 1 होगा. ठीक है, सो वी आर सेलेक्टिंग 1b आउट ऑफ 5 ब्रैकेट्स और बाकी 4 होंगे a's, तो वी आर सेलेक्टिंग ओनली 1b, तो 5c1 टाइम्स a टू द पावर 4 b टू द पावर 1. Now 5c2 ways of selecting 2 b's from 5 brackets, और b स्क्वायर हो जाएगा, a to the power 3 हो जाएगा. Then 5c3 because we are selecting 3 b's, तो a स्क्वायर b क्यूब, टोटल पावर हमारा 5 ही रहेगा हमेशा हर एक केस में, प्लस 5c4
a to the power 1 b to the power 4 प्लस 5c5 इंटू बी टू द पावर 5 बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग ऑल 5 बीज, ए का पावर 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, चाहो तो बी टू द पावर 0 भी लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ लास्ट में ए टू द पावर 0 भी लिख सकते हो। क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? और इसी से हमारा बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या होगा? 2c0 a टू द पावर 2 b टू द पावर 0 प्लस 2c1 a टू द पावर 1 b टू द पावर 1 प्लस 2c2 a टू द पावर 0 b स्क्वायर, जिसको सिंपली हम लिख देते हैं 2c2 यानी कि 1 आ गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली a प्लस बी होल क्यूब, दिस बिकम्स इक्वल टू 3c0 a टू द पावर 3 b टू द पावर 0 प्लस 3c1 a टू द पावर 2 b टू द पावर 1 प्लस 3c2 a टू द पावर 1 b स्क्वायर प्लस 3c3 b टू द पावर 3। सो ये वैल्यू हो गया हमारा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, क्लियर है? ठीक है, सो सिमिलरली x is equal to 9 plus 4 root 5 to the power 48. This can be written as 9 to the power 48 plus 48c1, 9 to the power 47, 4 root 5 to the power 1 plus 48c2, 9 to the power 46, 4 root 5 square plus 48c3, 9 to the power 45, 4 root 5 cube and so on. और सिमिलरली 1 बाई एक्स हमारा हो जाएगा 9 माइनस 4 रूट 5 टू द पावर 48, सो दिस विल बी 9 टू द पावर 48 माइनस, बिकॉज यहां पे 4 रूट 5 की जगह माइनस 4 रूट 5 आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस, माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस 48c1 9 टू द पावर 47 4 रूट 5 टू द पावर 1 प्लस 48c2 9 टू द पावर 46, 1 सेकेंड ओके, देयर वाज सम इशू, एक सेकेंड। हाँ, प्लस 48c2 9 टू द पावर 46 4 रूट 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 रूट 5 की जगह माइनस 4 रूट 5 है। ठीक है, बट माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, भाई माइनस 1 टू द पावर 1 तो माइनस 1 होगा, बट माइनस 1 का स्क्वायर विल बी प्लस 1, सो दैट इज वाई अल्टरनेट प्लस माइनस होगा। सो निगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म विल बी निगेटिव, तो माइनस 48c3 9 टू द पावर 45 4 रूट 5 का होल क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस, जहां पे नेगेटिव हो जाएगा तो सेम टर्म है, बस नेगेटिव साइन है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। और कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे इफेक्टिवली? 4 रूट 5 टू द पावर 1 और 4 रूट 5 टू द पावर 1, 4 रूट 5 की पावर 1 यानी कि यहाँ पे रूट 5 टू द पावर 1 आ रहा है, यानी इर्रेशनल टर्म है, तो इर्रेशनल टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल्ड आउट। सिमिलरली यहाँ पे 4 रूट 5 का क्यूब है, स्क्वायर है, तो रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5 ओनली। ठीक है, सो ये टर्म तो ऐड हो रहा है, बट इर्रेशनल टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऑल इर्रेशनल टर्म्स विल गेट कैंसिल्ड आउट। ठीक है, सो x प्लस 1 बाई एक्स विल बी अ ह्यूज वैल्यू, बट सारे इरेशनल टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट तो उन्हीं की वजह से आ रहा है, बिकॉज रैशनल टर्म में क्या आएगा? देखो यहाँ पे आ रहा है 9 टू द पावर 48, इस टर्म में आएगा 9 टू द पावर 46 इन 4 रूट 5 का स्क्वायर, सो ये टर्म भी इंटीजर आएगा, सो x प्लस 1 बाई एक्स विल बी इंटीजर वैल्यू, टोटल सम इंटीजर आएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का टोटल सम इंटीजर आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये पूरा बाइनोमियल समझने का पर्पज यही था कि x प्लस 1 बाई एक्स विल बी इंटीजर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लें कि x की वैल्यू आ रहा है 102459.6, तो 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0.4 आना चाहिए, तभी तो सम हमारा इंटीजर आएगा। कोई भी रैंडम वैल्यू लिया समझाने के लिए कि x प्लस 1 बाई एक्स इंटीजर आ रहा है, हमको पता है 1 बाई एक्स लेस देन 1 है, 1 बाई एक्स इज लेस देन 1, छोटा सा वैल्यू है, और x हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, और अगर x प्लस 1 बाई एक्स इंटीजर आ रहा है तो फॉर श्योर देखो x हमें क्या दे रहा है? x इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन प्लस सम फ्रैक्शन f। ठीक है, तो f में क्या ऐड करोगे कि हमें इंटीजर मिल जाए, और जो वैल्यू हम ऐड करने वाले हैं दैट इज लेस देन 1, so we must add 1 minus f, तभी तो x plus 1 by x हमारा इंटीजर होगा, so this will be integral part of x plus 1। क्या ये पार्ट क्लियर है? क्योंकि यही इस पूरे क्वेश्चन का क्रक्स है कि 1 by x will be equal to 1 minus f।
x प्लस 1 बाई एक्स इंटीजर आ रहा है और x इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस सम फ्रैक्शन, अल्टीमेटली 1 बाई एक्स इज लेस देन 1, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस एफ, तभी हमारा अल्टीमेटली ऐड करने पे हमें एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है। सो x इंटू 1 माइनस एफ विल बी इक्वल टू बेसिकली x इंटू 1 अपॉन x एंड हेंस इट विल बी इक्वल टू 1. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. Option A will be the answer. Is that clear? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, आंसर विल बी इक्वल टू 1. So that's all in this session. I believe जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा. And if you are able to appreciate the session, then make sure to hit the like button as well. If you have not already subscribed to the channel, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. If you have any doubts or queries or questions, you can always share your comments or questions in your comments. Okay, that's all for this session. And for any questions or queries regarding your preparation, you can always message me on Telegram at ADIT by AKT. That's all. Bye bye. Take care. Keep learning.